Auzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Now today we are going to start another series of lecture, which is actually the statistical principles and the application of research data and their analysis through a software which is called SPSS, means Statistical Package for Social Sciences. There are different versions of SPSS are available, and we will try to understand with these presentations that how to use research data and also use a statistical package for social sciences software, SPSS software, to analyze this data. But before going to that, first we need to understand different type of data which we collect from the research. तो नाउ लेट अस स्टार्ट. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर को. तो स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें और डेटा की अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या है, हाउ वी कैन डिफाइन स्टैटिस्टिक्स in measurement and descriptive analysis. Statistics is a science of learning from data and a measuring, controlling and communicating uncertainty. Means that we learn from the data, because in research we collect the data, and once we have collected the data in research, then we should measure it, control it, and then find the answer of that uncertainty, वो जो research question है उसका. Functions of statistics क्या है? If we talk about the functions of statistics, first we need to summarize the collected data, then organize the data, then make it presentable. Once it is presentable, then we will analyze with the help of SPSS software in upcoming lectures, and then once the data is analyzed, results are there, then we will make the interpretations. If we talk about the types of statistical analysis, there are two types of statistical analysis, or descriptive statistics, called descriptive statistics and inferential statistics. Descriptive statistics की अगर हम बात करें, as we already talked, we summarize the data, organize and present the data in a function of statistics and referred to as descriptive statistics. Examples are like, for example, mean, median, mode, central tendency of the data, or dispersion of data, variation in the data like variance, standard deviation, relative standard deviation, interquartile ratios, as well as range of the data. ये सब descriptive statistics की type है. If we talk about the inferential statistics, so inferential statistics is a analytical statistics in the interpretation function, collectively referred to as inferential statistics. इसमें हम testing of hypothesis करते हैं, और वो hypothesis जो होता है उसको हम check करते हैं कि जो हमारा research hypothesis था वो सही साबित हुआ statistically या सही साबित नहीं हुआ. If we talk about the types of data, we have collective called qualitative data, then quantitative data. Qualitative data की अगर हम बात करें, they are collected in words. For example, patient survive, not survive, work done, not done. Written observations or notes found in medical records are example of qualitative data. Like drug response occur, drug response not occur. Quantitative data की बात करें तो numerical और countable information है, like patient weight, height, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब क्वांटिटेटिव डेटा कहलाता है. इफ़ यू टॉक अबाउट बेस्ड अपॉन क्वांटिटेटिव डेटा, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स, डिस्क्रीट वेरिएबल्स एंड कंटिन्यूस वेरिएबल. डिस्क्रीट वेरिएबल्स और कैटेगोरिकल वेरिएबल्स जो है वो हम उसकी भी एग्जांपल देखेंगे, और कंटिन्यूस वेरिएबल्स की भी एग्जांपल देखते हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट द डिस्क्रीट वेरिएबल टू टाइप के होते हैं, नॉमिनल डेटा एंड ऑर्डिनल डेटा. Nominal data, like for example in the form of yes or no, patient survive or not survive, drug response is there or no drug response is there. Ordinal data, orderly arrange होता है, like for example pain scale. For example, someone is having a pain and we have given painkiller to that individual. Now we are asking the individual to rate the response of the drug on the pain scale, 0 to 10 or 0 to 7. For example, 0 means no relief from pain and 10 means full relief of pain.
और 0 से 10 तक बीच में भी मार्किंग की हुई है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पेशेंट को जैसा रिस्पॉन्स आया उस तरह से उसको रिस्पॉन्स कर दे। तो ये एक ऑर्डरली अरेंज है, तो इसको हम ऑर्डिनल डेटा, इस तरह से जो रिसर्च डेटा कलेक्ट होता है उसको हम ऑर्डिनल डेटा कहते हैं। ये इस तरह से क्वांटिटेटिव 0 1 2 3 5 4 5 करके भी हो सकता है, और वर्डिंग में भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल नो पेन रिलीफ, माइल्ड पेन रिलीफ, फेयर पेन रिलीफ, गुड पेन रिलीफ, वेरी गुड पेन रिलीफ, एक्सीलेंट पेन रिलीफ, फुल पेन रिलीफ, इस तरह से भी ऑर्डरली अरेंज हो सकता है। इसके बाद आइए आप फिर अगर हम इसकी बात करें कंटिन्यूस वेरिएबल्स की, तो कंटिन्यूस वेरिएबल्स आर फर्दर कैटेगराइज इनटू इंटरवल डेटा एंड रेशो डेटा। इंटरवल डेटा लाइक बॉडी टेम्परेचर, जिसमें इंटरवल होता है लाइक फॉर एग्जांपल 37 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो 1 डिग्री का इंटरवल है। रेशो डेटा एज, वेट, हाइट, BMI, परसेंटेजेस, ये सब जो है वो रेशो डेटा कहलाता है। हेयर इज़ ए लेवल ऑफ मेजरमेंट। नॉमिनल डेटा, डिस्क्रीट डेटा, मेल फीमेल, रेस, डिफरेंट रेसेस, वाइट, ब्लैक, येलो, एशियन, यस, नो। ऑर्डिनल डेटा लाइकर्ट टाइप पेन स्केल, वही जैसे कि फुल पेन रिलीफ, माइल्ड पेन रिलीफ, फेयर पेन रिलीफ, गुड पेन रिलीफ, या पेन स्केल 0 to 10। इंटरवल डेटा लाइक फॉर एग्जांपल बॉडी टेम्परेचर। रेशो डेटा एज, वेट, हाइट, BMI, इस तरह का जो डेटा होता है वो जो होगा वो रेशो डेटा कहलाएगा। If we talk about the variables of research question, we have 3 different type of variables in any research: independent variable, dependent variable, and control variable. Now, what is independent variable? Value that independent variable take are not influenced by other variable. यानी इससे कोई independent variable को कोई भी दूसरा वेरिएबल इस पर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, असरअंदाज नहीं हो सकता। लाइक फॉर एग्जांपल डोज ऑफ ए ड्रग और ड्रग रिस्पॉन्स, ये जो है ये डोज हम 100 मिलीग्राम दी है तो बस 100 मिलीग्राम दी है, 500 दी है तो 500 दी है, या ड्रग अगर दी है तो दी है, नहीं दी है तो नहीं दी है। यस, डोज से प्लाज्मा कंसंट्रेशन जितनी होगी वो वेरी कर सकती है पेशेंट टू पेशेंट, सो दैट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, तो हम उसको कहेंगे ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। और ड्रग का रिस्पॉन्स जो है वो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो और ये वेरी इसलिए करता है क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट एज का फ़र्क होता है, रेस का फ़र्क होता है, जेंडर का फ़र्क होता है, बॉडी की फिजियोलॉजी का फ़र्क होता है। तो वो जो थर्ड फैक्टर एज, रेस, जेंडर है वो कंट्रोल वेरिएबल है जो डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब अगर हम देखें तो ये डेफिनेशन यही में बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डोज ऑफ ए ड्रग और कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन और प्रीडिक्ट द वैल्यू दैट द डिपेंडेंट वेरिएबल टेक। ये डोज ज़्यादा दी तो रिस्पॉन्स ज़्यादा आया, डोज कम दी तो रिस्पॉन्स कम आया, ड्रग नहीं दी तो रिस्पॉन्स नहीं आया, ड्रग दी तो रिस्पॉन्स आया। प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ड्रग रिस्पॉन्स। कंट्रोल वेरिएबल इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, जैसे एज, रेस, जेंडर, बॉडी की फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म, तो वो वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, तो ये भी वेरी कर सकता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। देयर आर 3 कॉमन मेथड ऑफ मेजरिंग द सेंट्रल टेंडेंसी इन द डेटा। मीन मालूम करते हैं हम, मीडियन मालूम करते हैं, मॉड मालूम करते हैं। इसी तरीके से डेटा में वेरिएशन है, डिस्पर्जन है, दैट कैन ऑल्सो बी डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज या रेशो, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड द स्क्यूनेस ऑफ डेटा। रेंज की एग्जांपल देखें। रेंज इज ए डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़। अगर एज ऑफ द पेशेंट आर 20 38 से लेके 51 तक, 68 मैक्सिमम है, तो इसका डिफरेंस निकला, रेंज आई 48। IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसको 4 सेक्शन में हम डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट 25, सेकंड 25, थर्ड 25 एंड फोर्थ 25, जो कि यहाँ पर मौजूद है। जैसे ये क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल 4, तो ये फर्स्ट 25%, सेकंड 25, थर्ड 25, फोर्थ 25, ये टोटल मिला के 100% बन रहा है। अब ये मार्क्स ऑब्टेन्ड 76 से 120 हैं, यानी टॉप 25 क्वार्टाइल में जो है वो 20 स्टूडेंट आ रहे हैं। फिर 51 से 75 में 35 स्टूडेंट है, ये सेकंड 25% में जो स्टूडेंट आ रहे हैं। थर्ड में ये आ रहे हैं जिनके 26 से 50 मार्क्स हैं, और 1 से 25 वाले 15 स्टूडेंट है जो कि फोर्थ क्वार्टाइल में यानी सबसे पुअर रिस्पॉन्स वाले स्टूडेंट हैं। तो इस तरह से भी डेटा को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। इसके अलावा वेरिएंस शो फार द वैल्यूज़
ऑफ ए वेरिएबल लाई फ्रॉम द मीन, मीन से कितना वैल्यू प्लस माइनस जा रही है, दैट इज कॉल्ड वेरिएंस. इफ यू टेक द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस वेरिएंस देन इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन. यानी वेरिएंस का ही जो होगा रूट जो हम लेंगे स्क्वायर रूट, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा. और उसी को अगर स्टैंडर्ड डेविएशन है हम उसका स्क्वायर ले लेंगे तो वो फिर वेरिएंस कहलाएगा. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या है? दैट इज एक्चुअली कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, इससे कोएफिशिएंट आ जाएगा. और अगर परसेंटेज निकालनी हो तो फिर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. Box and whisker plot that we use in our research, virtually meaningful way of presenting the spread of data. Research can pinpoint minimum and maximum value, जैसा कि ये दिया हुआ है यहाँ पर कि ये maximum value है, ये minimum value है. और हाईलाइट IQR अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें 1 2 3 और ये 4 में. मीडियन डिनोटेड बाय द मीडियन लाइन, जैसे ये इसमें जाहिर हो रही है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल. एंड मीन वैल्यू अपीयर एज ए डायमंड, जैसा कि ये रेड कलर में ये हमें नज़र आ रहा है. तो दिस इज़ कॉल्ड विस्कर प्लॉट. दिस इज़ कॉल्ड बार चार्ट. बार चार्ट क्या होता है? ये हॉरिजॉन्टली अरेंज होता है, आप ये देख सकते हैं, जिसमें इसमें ये दिए हुए वेरियस फ्रूट्स एंड कैलोरीज पर सेविंग, एप्पल, बनाना, कैंटेलप, ग्रेप्स, कीवी, ऑरेंज, पियर. और ये यूज़ होता है यूजुअली डिस्क्रीट और कैटेगोरिकल डेटा की रिप्रेजेंटेशन के लिए. इसके बाद है हमारे पास हिस्टोग्राम. बार ग्राफ हमारे पास अगर था डिस्क्रीट डेटा के लिए, तो हिस्टोग्राम होता है कंटिन्यूस डेटा के लिए, जिसमें आपके पास इंटरवल और रेशो डेटा आता है. और यहाँ पर हम जो है वो डेटा को प्लॉट करते हैं. दिस इज़ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. पाई चार्ट, इट इज़ ऑल्सो ए वन ऑफ द वे टू रिप्रेजेंट द डेटा. इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड क्लास ऑफ ड्रग, मीन्स कि उसका मार्केट साइज है 658 बिलियन की जो है वो मार्केट है ड्रग की. US, यूरोप, जापान, इमर्जिंग मार्केट्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मिला के 2016 में 1205 बिलियन की हो गई. इसमें ये डिफरेंट कंट्रीज़ के लाइक US का ये ब्लू कलर से शेयर दिखाया गया है. तो दिस इज़ ऑल्सो ए वे टू रिप्रेजेंट द डेटा. So here we have completed first part of our lecture. Now we are going to start second part. In second part, basically we will discuss or we will come to know the interpretation and basic concepts of statistics. If we talk about the interpretation and basic concepts, we already discussed descriptive statistics and inferential statistics. If we talk about the descriptive statistics, it is useful tool for presenting basic information. Central tendency इसमें मालूम की जाती है, mean, median, mode, standard deviation, जो कि spread of the data, IQR, interquartile range, relative standard deviation. Inferential statistics में we already discussed that hypothesis testing, test of significance, like for example RCTs, randomized control trial versus placebo or active control require hypothesis testing. That actually test we do whether new treatment is statistically significant in target population for the response. यानी इसका मतलब क्या है कि we have developed a new drug and a new antihypertensive drug, and we want to compare its effect with the old marketed product कि क्या इसका एंटी हाइपरटेंसिव रिस्पॉन्स उसी के जैसा है या उससे बेहतर है, ये हम चेक करना चाहते हैं. तो फिर हम इसके लिए डेटा कलेक्ट करेंगे लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स में, कुछ को न्यू ड्रग खिलाएंगे, कुछ को ओल्ड ड्रग खिलाएंगे, और फिर दोनों का डेटा स्टैटिस्टिकली कंपेयर किया जाएगा. इसमें हम दो तरह के हाइपोथेसिस बनाएंगे, एक नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस, वो हम अभी आगे चल के डिस्कस करेंगे. If you talk about the distribution of data, statistical distribution, we have empirical distribution, values from actual data, frequencies of the data कि कौन से ज़्यादा हैं कौन से कम हैं, ज़्यादा लोगों को एडवर्स इफेक्ट हुए, कम लोगों को एडवर्स इफेक्ट हुए, वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. इसके अलावा ऑब्जर्व लेंथ ऑफ स्टे फॉर पेशेंट इन द हॉस्पिटल. स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, और अदर डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन जिसको एनोवा भी कहा जाता है. हेयर इज़ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू एज बेल शेप कर्व. ये एक बेल शेप कर्व नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मली डेटा जो होता है हमारा नॉर्मल पॉपुलेशन का इसी तरह का होता है. This is all in this population we have symmetrical distribution. Here mean, median and mode are same.
This type of data, bell-shaped curve, usually we get from the interval or ratio data. Normal distribution can be categorized as T distribution or Z distribution. If we talk about the Z distribution, data has been transformed to follow standard normal distribution, mean 0, standard deviation 1, और मीन वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू को हम चेक करते हैं, इसके ज़रिए ये डेटा चेक करते हैं डेटा की. इसके अलावा टी डिस्ट्रीब्यूशन भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन बस फ़र्क ये है दोनों में, टी डिस्ट्रीब्यूशन में और जेड डिस्ट्रीब्यूशन में, कि इफ़ आवर डेटा इज़ स्मॉल मीन्स लेस देन 30, सैम्पल साइज इज़ लेस देन 30, देन वी अप्लाई T distribution. Otherwise, if the sample size is big, then we apply Z distribution. Binomial distribution, we have two options, like for example alive or dead discrete data. Here it is P plus Q is equal to 1. 1 means 100. P is the probability of success like alive. Q is the probability of failure, for example dead. तो कितने डेड रहे एक्सपेरिमेंट में, कितने डेड हुए, कितने अलाइव रहे, कितनों से रिस्पॉन्स आया ड्रग से, कितनों को रिस्पॉन्स नहीं आया. दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. अदर टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, अप्लाई फॉर ऑर्डिनल डेटा. एनोवा और एफ डिस्ट्रीब्यूशन, पैरामेट्रिक टेस्ट कंटिन्यूस डेटा के लिए यूज़ होता है. नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन भी है, और अदर डिस्ट्रीब्यूशन में रिग्रेशन एनालिसिस भी आता है. हाइपोथेसिस टेस्टिंग की अगर हम बात करें, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस इन एन इनडायरेक्ट मैनर, फॉर्मली इट इज़ नल हाइपोथेसिस सिग्निफिकेंस टेस्टिंग. कैरेक्टरिस्टिक्स मस्ट हैव डेक्लेरेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन. कोई जो हाइपोथेसिस होगा वो किसी सेंटेंस या क्वेश्चन की फॉर्म में होगा और डिस्क्राइब करेगा रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल एंड टेस्टेबल बाय एम्पेरिकल मीन्स, लाइक फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डेविएशन, लाइक मीन्स ऑफ द रिस्पॉन्स. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगली स्लाइड में देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस क्या है? जनरली फॉर्मुलेटेड एज स्टेटिंग नो रिलेशनशिप और नो डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल. यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम अगर उसी एग्जाम्पल को ले लें, वो जो हम अभी न्यू ड्रग और ओल्ड ड्रग की बात कर रहे हैं, तो न्यू ड्रग जो है और ओल्ड ड्रग के आपस में रिलेशनशिप या डिफरेंसेस क्या हैं, तो ये हम नल हाइपोथेसिस ये बनाएंगे कि दोनों के जो मीन रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर है वो सिमिलर होगा, यानी उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा. ऑल्टरनेट ये होगा कि नहीं डिफरेंस है, क्योंकि इट इज़ अपोजिट टू नल हाइपोथेसिस. तो नल हाइपोथेसिस होगा कि दोनों ड्रग के एंटी हाइपरटेंसिव रिस्पॉन्स में कोई फ़र्क नहीं है. ऑल्टरनेट होगा नहीं फ़र्क है. तो अब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा तो ये प्रूव हो जाएगा कि दोनों ड्रग में फ़र्क है. और अगर वो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया बेस्ड अपॉन रिसर्च डेटा, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि कोई ड्रग, दोनों ड्रग में फ़र्क नहीं है. यूजुअली वी हैव एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर. और एरर क्यों होता है? क्योंकि वी यूजुअली डू स्टडी ऑन ह्यूमन और एनिमल. दे हैव डिफरेंट ह्यूमन एंड डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट फिजियोलॉजी, और उसकी वजह से ड्रग के रिस्पॉन्स में भी फ़र्क आ सकता है. इसलिए कुछ ना कुछ चांस ऑफ एरर हम दे सकते हैं. 100% इसमें नहीं हो सकता. टाइप 1 एरर हम किसे कहेंगे? रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, मीन्स कि ये ट्रू एक्सेप्ट होना चाहिए लेकिन रिजेक्ट हो गया. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एरर ऑफ एंजाइटी. लिहाजा हम इसका कुछ मार्जिन रखते हैं. दैट मार्जिन एरर रेट मस्ट बी 1%, 5% और 10%, जिसको हम अल्फा 0.01 1% के लिए, 0.05 5% के लिए, 0.1 10% के लिए कहते हैं. ये क्या है? ये 1, 5, 10 एक्सेप्टेबल टाइप 1 एरर, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. तो ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कहलाता है. ये परमिटेबल एरर है, यानी इतने मार्जिन तक हम रख सकते हैं. यानी एक्चुअली वी आर 95% श्योर कि अगर हमने नल हाइपोथेसिस बनाया, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में बात की थी कि नल हाइपोथेसिस हमने बनाया कि न्यू ड्रग विल नॉट हैव डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस विद द ओल्ड ड्रग इन रिडक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर. ऑल्टरनेट क्या है कि है फ़र्क. तो 5%, 95% वी आर श्योर कि नहीं है, 5% के फ़र्क है. तो ये हम डिफरेंस रखते हैं. फेलिंग, अच्छा टाइप 2 एरर, फेलिंग टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स. ये अपोजिट है इसके, कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ. दिस इज कॉल्ड टाइप 2 एरर. ये कब होता है? जब सैम्पल साइज स्टडी का सही नहीं होता और स्टडी की पावर कम है. टाइप 2 एरर की भी एक लिमिट है 20 और 10%. 20% अगर हम एरर रखेंगे तो 80% पावर हो जाएगी स्टडी की, क्योंकि
Type 2 error is represented by beta and 1 minus beta. 1 means 100. 100 minus 20 80 means पावर कितनी हुई 80%. और अगर हम 10% रख रहे हैं तो फिर ये 1 माइनस 10 इज इक्वल टू यानी 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90, तो पावर हो जाएगी स्टडी की 90%. ये एक्सेप्टेबल लिमिट है. और ये पावर हम स्टडी की उसी सूरत में बढ़ा सकते हैं जब हम स्टडी का सैम्पल साइज बढ़ाएंगे. सो एरर कैन बी मिनिमाइज बाय अप्रोप्रिएट सैम्पल साइज ऑफ स्टडी. लेकिन इसमें एक मसला ये है कि हम सैम्पल साइज एक हद तक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सैम्पल साइज जितना हम बढ़ाएंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स टेस्ट में बढ़ जाएंगे या स्टडी में बढ़ जाएंगे. उससे क्या होगा कि स्टडी की कॉस्ट बढ़ जाएगी, और जब स्टडी की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो फिर दिस इज़ ए बिग इशू. तो फिर उस इशू को हैंडल करना मतलब कि फाइनेंशियल कॉस्ट को बियर करना मुश्किल हो जाएगा. If we talk about the error, so again वही results of the study conclude the drug reduce LDL, ये conclude होना चाहिए. लेकिन क्या हुआ कि incorrect conclusion हुआ, यानी drug does not reduce LDL. This is called type 1 error. और अगर results conclude होना चाहिए drug did not reduce LDL, लेकिन drug reduces LDL, ये आ गया result कि मीन्स के जो है वो null hypothesis जो था वो रिजेक्ट होना चाहिए था लेकिन एक्सेप्ट हो गया, तो इनकरेक्ट कंक्लूजन, दिस इज कॉल्ड टाइप 2 एरर. तो ये जो है वो एरर से हमें, लेकिन हमने इसका मार्जिन रखा हुआ है अल्फा एरर 5%, बीटा एरर 80%. अच्छा, अब अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस मे बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड. अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, इट मीन्स दैट सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन बोथ ड्रग्स, यानी न्यू ड्रग और ओल्ड ड्रग में ब्लड प्रेशर रिडक्शन में सिग्निफिकेंट फर्क है. और अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया तो इसका मतलब है कि दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, बल्कि वो दोनों सिग्निफिकेंटली सिमिलर है. अगेन आई रिपीट, अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ मीन्स बोथ ड्रग्स आर सिग्निफिकेंटली सिमिलर एंड नो डिफरेंस बिटवीन न्यू ड्रग एंड ओल्ड ड्रग. अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि both drugs are significantly different and they are different. Terms like highly significant for p-value less than 0.05 or very highly significant for p-value 0.01 are inappropriate. ये inappropriate words हैं. Statistics में statistical significance में exist और may not, only two possibilities. यानी अगर null hypothesis reject हुआ तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, भले पी वैल्यू 0.01 हो, 0.001 हो, 0.049 हो, बस 0.05 से कम होनी चाहिए अगर अल्फा लेवल 0.05 है. अगर हमारा अल्फा लेवल, जो कि हम ज़्यादातर अपनी बायोलॉजिकल और फार्मास्यूटिकल स्टडीज़ में, ड्रग टेस्टिंग स्टडीज़ में 5% अल्फा की वैल्यू यानी 0.05 रखते हैं, तो 0.05 से कम जो भी वैल्यू है बस सिग्निफिकेंट हो गया और फिर ये एक्सेप्टेबल पार्ट में आ गया. Thank you very much. This is second part. Now we are moving towards another part, bivariate analysis and comparing group. और अब हम practical application की तरफ जा रहे हैं. Bivariate analysis क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं. Bivariate analysis, most common research design in biomedicine involvement comparison of outcome in two groups. Like for example वही है कि एंटी हाइपरटेंसिव रिस्पॉन्स आउटकम है न्यू ड्रग और कंपेयर टू ओल्ड ड्रग. वन ग्रुप रिसीव एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट न्यू ड्रग, सेकेंड ग्रुप रिसीव कंपैरिजन ट्रीटमेंट, वो प्लेसिबो भी हो सकता है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट यानी जो ओल्ड ट्रीटमेंट है, यूजुअल केयर भी. आउटकम्स ऑफ बोथ ग्रुप असेस बाय स्टैटिस्टिकल टेस्ट फॉर एफिकेसी और सेफ्टी. केस सिनेरियो, ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट प्रोवाइड सर्विसेज टू लार्ज नंबर ऑफ टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स. अब एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट है, वो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है. सर्विसेज आर एक्सरसाइज क्लासेस एंड जिम फैसिलिटीज़, तो एक्सरसाइज क्लासेस और जिम फैसिलिटीज़ देता है. इट इज़ ऑब्वियस दैट द एक्सरसाइज इम्प्रूव ग्लाइसेमिक कंट्रोल इन डायबिटीज़ मेलाइटस पेशेंट. ठीक है कि हमें यह मालूम है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनका ग्लाइसेमिक कंट्रोल ज़्यादा अच्छा होगा कंपेयर टू दोज वन जो एक्सरसाइज नहीं करते. फार्मेसिस्ट वांट टू नो दैट वेदर दिस सर्विस इज़ इफेक्टिव. अब क्योंकि ये फार्मेसी जो है वो या फार्मेसिस्ट ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जिम फैसिलिटी और एक्सरसाइज क्लासेस, तो ये चेक करना चाहता है कि वो मरीज़ जो इसके पास आते हैं और जिनको ये क्लासेस देता है और जिम की एक्सरसाइज की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो उनको इससे डायबिटीज़ पर क्या फ़र्क पड़ रहा है और वो इफेक्टिव भी है या नहीं है. इन ऑर्डर टू गैदर द एविडेंस, स्टडी इज़ डिज़ाइन. इसने एक स्टडी की. पेशेंट वर डिवाइडेड इनटू
ट्रीटमेंट ग्रुप मीन्स एक्सरसाइज ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप यूजुअल केयर, यानी जो सिर्फ दवाएं ले रहे थे और एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे। एंड पॉइंट स्टडी वॉज HbA1c लेवल रिडक्शन टू द नॉर्मल, और एंड पॉइंट स्टडी का ये था कि जो इसके पेशेंट के या जो ग्रुप है दोनों ग्रुप के HbA1c में कितना फ़र्क है। इस पर जो टेस्ट लगेगा दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट ग्रुप टी टेस्ट। इन दिस केस ट्रीटमेंट ग्रुप इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, HbA1c इज डिपेंडेंट वेरिएबल। अब वहाँ पे था ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। ट्रीटमेंट ग्रुप एक्सरसाइज इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उससे HbA1c पे जो फर्क पड़ेगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। 10 पेशेंट्स इन ईच ग्रुप सिलेक्टेड रैंडमली, ठीक है, दोनों ग्रुप में 10 पेशेंट्स आपने सिलेक्ट किए, यूजुअल केयर वाले में भी, ठीक है, ये जो यूजुअल केयर वाला था यानी जो सिर्फ दवाएं ले रहा था, और दूसरा जो 10 पेशेंट्स यहाँ थे जो एक्सरसाइज भी कर रहे थे और ड्रग भी ले रहे थे, तो दोनों के जो है वो 10 पेशेंट्स लिए गए। नल हाइपोथेसिस जनरेट किया गया कि मीन रिडक्शन ऑफ HbA1c इन एक्सरसाइज ग्रुप माइनस मीन रिडक्शन इन यूजुअल केयर ग्रुप इज इक्वल टू 0, यानी दोनों के मीन रिडक्शन HbA1c में कोई फर्क नहीं होगा। ऑल्टरनेट क्या कह रहा है, फर्क होगा, 0 नहीं होगा, दोनों में डिफरेंस आएगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी अल्फा एरर हमने दिया 5% का चांस 0.05, और जब हमने इसका डेटा कलेक्ट किया और इनके मीन निकाले दोनों के कि मीन HbA1c ऑफ एक्सरसाइज ग्रुप और मीन HbA1c ऑफ यूजुअल केयर, तो उनके मीन का डिफरेंस आया 0.45। तो अगर हम डेटा को देखें तो वो कुछ इस तरह से था कि ये एक्सरसाइज ग्रुप HbA1c लेवल, ये 10 पेशेंट ये हैं, ये इनका मीन है 7.35, और ये हैं कंपैरिजन ग्रुप जो कि यूजुअल केयर वाले थे जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, ये वो 10 पेशेंट है और इनका मीन है 7.80, और इन दोनों के मीन का जो डिफरेंस था वो वहाँ पे हमने नोट किया कि वो जो डिफरेंस था वो बेसिकली 0.45 था, और हम चेक भी कर सकते हैं 7.35 माइनस 7.8 वही 0.45 आ रहा है। इनका जब हमने वेरिएशन निकाला डेटा का तो इसका वेरिएंस 0.1252, इसका 0.29, टेस्ट स्टैटिस्टिक टी टेस्ट लगाया इसमें 2.69, पी वैल्यू आई 0.015। अब ये देखें 0.05 से कम है, इसका मतलब हुआ नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। और नल हाइपोथेसिस क्या कह रहा था, अगर हम वापस जाएं कि नल हाइपोथेसिस ये कह रहा था कि मीन रिडक्शन इन HbA1c इन एक्सरसाइज ग्रुप और मीन रिडक्शन इन यूजुअल केयर ग्रुप दोनों का डिफरेंस 0 होगा, यानी दोनों में जब कोई फ़र्क नहीं होगा जब ही तो 0 होगा। अल्टरनेट कह रहा था कि नहीं, फ़र्क होगा, 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, और वो डिफरेंस कितना आ रहा था 0.45। अब चेक ये करना है ये डिफरेंस स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है, वो हमें यहाँ से पता चल गया। वो ऐसे पता चला कि पी वैल्यू इस टेस्ट में आई लेस देन 0.05 जो कि आ रही है 0.015, तो इससे पता चला कि दोनों में ये 0.45 यानी वो पेशेंट्स जो कि एक्सरसाइज कर रहे थे उनमें सिग्निफिकेंटली बेटर रिडक्शन ऑफ HbA1c हुआ कंपेयर टू दैट इंडिविजुअल्स जो कि एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे। तो इसको हमने इस तरीके से किया, तो दिस इज कॉल्ड टी टेस्ट और टेस्ट, और ये जो 2.69 आया वो इस फार्मूले से आया, मीन ऑफ HbA1c ऑफ एक्सरसाइज, मीन ऑफ यूजुअल केयर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप 1, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप 2 N1 N2 यानी वही एक्सरसाइज ग्रुप नॉन एक्सरसाइज ग्रुप, और ये S को कैलकुलेट करने का ये तरीका था। Statistically significant difference found in HbA1c level of both group. Exercise program is most likely effective in reducing HbA1c level. Now, अब हम इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं, बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा। जब हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो फिर हम इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन SPSS पर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।